So let's start the lecture. So we were doing optimization part. I actually introduced you guys with what type of function we are going to consider in this course. So the function that we are going to consider is y is equal to f of x. ठीक है, और जो f of x है वो इनपुट पे क्या ले रहा है, एक वेक्टर ले रहा है, या आप इसको more generalized term में you can consider it as a matrix also because vector is one form of matrix. और जो output दे रहा है it is a scalar 1 cross 1. And on f we assume two things. Number one, it is continuous function, and number two, it is differentiable. So we can take at least its two derivative. Okay, together these two properties define what we call smooth functions. Okay. So then we said we are not interested in min of f of x. So this is basically minimum value of f of x. Okay, we are interested in argmin f of x. So what is this? This is value of x at which minimum of f of x is achieved. Okay, so please be careful between these two notations. Most of the time you will encounter this notation. People usually skip this arg thing, but whenever we do optimization, we mean this quantity, argmin f of x. Okay, so we said that the tool that we have for optimization is calculus. So we said that we have derivative at minimum points equal to 0. So we have to rely on this fact, which is derivative of f of x at x star. So this x star इसको भी मैं define करता हूँ, is 0. This is a very broad statement, very general thing, which is true for derivative of any differentiable functions. So this x here could be minimum or maximum, ठीक है, or it could be a saddle point. आज मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा आप लोगों को. So this x in general is called stationary point. Stationary point. So it could be minimum of f of x, it could be maximum of f of x, or it could be something which is saddle point, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ what is a saddle point and how it is different from minimum and maximum. So before we are even able to utilize this fact that derivative of f of x at 0, हमारा गोल क्या है उसको आपने हमेशा जहन में रखना है. So these are not easy things. हमारा गोल ये है कि हमने ये जो arg min of f of x है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. मीन्स हमने x फाइंड करने हैं. कौन से x? जो कि f of x की मिनिमम वैल्यू को करिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, फॉर दैट वी विल बी यूजिंग दिस कैलकुलस रूल. But before we are even able to use this rule, we have to consider some definitions and some theorems. So इस पोर्शन ऑफ द कोर्स के लिए मैं एक रीडिंग भी अपलोड करूंगा, एक बुक बेसिकली अपलोड करूंगा. उसके 2-3 चैप्टर हैं, छोटी सी बड़ी कंसाइज बुक है. विद द हेल्प ऑफ मैटलैब वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो कि अभी तक हमने पढ़े हैं. और फॉर ऑल दोज गाइस जिनको जो पिछला लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन था उनको बुक वगैरह की रीडिंग चाहिए, तो आपकी जो हैंड आउट है उसमें कोर्स हैंड बुक थी, उसमें मैंने बताई हुई है एक बुक, मून की बुक है, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग. उसके जो है वो पहले 4-5 चैप्टर्स में से हमने सिलेक्टिव चीज़ें की हैं.
प्रोजेक्शन थ्योरम्स, इनवर्सेस, लीस्ट स्क्वायर, मिनिमम नॉर्म वाली चीज़ें की हैं। तो आप वो बड़ी ही एक जामे बुक है, आप उसको देख सकते हैं। इस पोर्शन की बुक मैं अपलोड कर दूंगा अभी आज लेक्चर के बाद, और मैं आपको बता भी दूंगा कि आपने कौन से वाले जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है। बड़ी शानदार बुक है, यू विल एक्चुअली एंजॉय इट while reading if you are a book reader. Okay ji, so some formal definitions before we are able to use this fact that derivative of a smooth or differentiable function is zero at every stationary point. So what are those definitions? So first definition is about global minimizer of f of x. So a point, remember we are in n dimensional space, ठीक है? तो हमारा जो f of x है वो r to the power n से एक वेक्टर लेता है और हमें रिटर्न करता है एक स्केलर r to the power 1 में। सो हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं या x हैं या जो x1 x2 जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इस r to the power n डायमेंशनल स्पेस में से आ रहे हैं। तो पॉइंट या वेक्टर दे आर इंटरचेंजेबल जैसे हम उनको यूज कर रहे हैं। सो अ पॉइंट और वेक्टर x steric is called a global minimizer ठीक है, ग्लोबल मिनिमाइजर ऑफ f of x if अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं फंक्शन की वैल्यू एवेलुएट करूं then this value is always less than equal to, मैं किसी भी और पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एवेलुएट करूं, किसी भी और पॉइंट के ऊपर, ठीक है, फॉर ऑल x। अगर ये प्रॉपर्टी इस x स्टैरिक में है तो इस x स्टैरिक को हम कहेंगे ये ग्लोबल मिनिमाइजर है f of x का। ओके, सो देन वी हैव सेकंड डेफिनेशन। इनको फिर मैं ग्राफ से आपको बताता हूँ तीनों डेफिनेशन दे के। सो सेकंड डेफिनेशन इज अ पॉइंट और वेक्टर x hat is called a local minimizer if there is a neighborhood if f of x steric is less than equal to f of x for all x, ठीक है, लेकिन ये x कहाँ से आ रहे हैं, ये x hat की एक नेबरहुड में से आ रहे हैं जो यहाँ पे n है, ठीक है। तो आप यूँ समझ लें कि आपके पास जो है वो कोई एक पॉइंट है x hat और इस पॉइंट के इर्द गिर्द कुछ नेबरहुड है इसकी, ये वाले सारे पॉइंट्स, राइट। तो इन सब पॉइंट्स में से जो x hat है उसके ऊपर सिर्फ फंक्शन की वैल्यू हम इस नेबरहुड के बाहर नहीं देख रहे, मसलन इस साइड और इस साइड पे नहीं देख रहे, जो पॉइंट्स हैं उनको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम सिर्फ एक लोकल विसिनिटी में देख रहे हैं कि आप फंक्शन की वैल्यू वहां पे मिनिमम है कि नहीं है, तो वो लोकल मिनिमाइजर होगा। अब इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, वो मैं आपको फिगर से अब बताता हूँ लोकल मिनिमाइजर की। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वन डायमेंशनल फंक्शन है विच इज समथिंग लाइक दिस। सो वन डायमेंशनल मीन एक्स आपके पास एक स्केलर है और जो एफ ऑफ एक्स है वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा, राइट। और इसका जो प्लॉट है, लेट्स सपोज इस तरह का कोई प्लॉट है, सो वी हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ये पॉइंट है, ये वाला एक्स एक्सिस के ऊपर, सो दिस एक्स इज आवर ग्लोबल मिनिमाइजर,
मीन्स के इस x के ऊपर जो आपका f ऑफ x है उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम है अगर आप सिर्फ इस रेंज के ऊपर इस फंक्शन को देखें जो मैंने प्लॉट किया है। तो एंड अज्यूमिंग के इस रेंज के बाहर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, मीन्स के ये फंक्शन इधर ऐसे जा रहा है और ये फंक्शन ऊपर जा रहा है फिर नीचे नहीं आ रहा वापस। तो ये आपका ग्लोबल मिनिमाइजर है। लोकल मिनिमाइजर क्या है? ये आपका लोकल मिनिमाइजर है, यहाँ पे भी एक मिनिमम आ रहा होगा आपके पास। ये आपका लोकल मिनिमाइजर है अगर आप इस विसिनिटी में देख रहे हैं, ये लोकल मिनिमाइजर है, ये लोकल मिनिमाइजर है, और यहाँ पे ये सारे के सारे जो एक्स हैं इस पोर्शन में ये सारे लोकल मिनिमाइजर है। ठीक है, अगर आप अपनी जो नेबरहुड है उसको लिमिट कर दें ओनली इन दिस रीजन। तो अब आप देख रहे हैं कि जो लोकल मिनिमाइजर है उनकी दो टाइप्स बन रही हैं। एक जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, वी कॉल दीज लोकल मिनिमाइजर्स एज स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमाइजर्स। स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमाइजर्स के फंक्शन जो है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आके डिप होता है और फिर ऊपर जाना शुरू कर देता है, वहां पे जाके कांस्टेंट नहीं हो जाता। दे आर स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमाइजर्स। और जो ये वाले सारे पॉइंट्स होंगे हम इन्हें कहते हैं दे आर वीक लोकल मिनिमाइजर्स। मीन के फंक्शन आएगा एक वीक लोकल मिनिमाइजर, मसलन ये वाला एक्स था, यहाँ पे कोई एक्स था, वहां पे आया, मिनिमम अचीव किया, फिर उस मिनिमम के ऊपर वो कांस्टेंट हो गया, आफ्टर सम टाइम जो है वो फिर इंक्रीज करना शुरू हो गया। सो दीज आर कॉल्ड वीक लोकल मिनिमाइजर, मींस दे आर नॉट यूनिक। उनकी विसिनिटी में और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फंक्शन की उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी आपको पहला पॉइंट दे रहा था या कोई और पॉइंट दे रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बिटवीन स्ट्रॉन्ग लोकल मिनिमाइजर एंड वीक लोकल मिनिमाइजर्स। अब ये वाली चीज ग्लोबल मिनिमाइजर के साथ भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मिनिमाइजर एंड स्ट्रॉन्ग जो है वो वीक ग्लोबल मिनिमाइजर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन ग्लोबल मिनिमाइजर्स। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। जी शोएब। सर ये स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमाइजर और वीक लोकल मिनिमाइजर का मतलब आई एम लॉस्ट इन इट थोड़ा सा। अच्छा, तो एक दफा फिर देख लें। सो ग्लोबल मिनिमाइजर तो क्लियर है ना कि वो वाला एक्स जिसके ऊपर फंक्शन की ग्लोबली जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी। जो लोकल मिनिमाइजर है उसमें जो है वो दो टाइप्स की सिचुएशन आ सकती है कि आपका फंक्शन जो है वो आया, उसने एक मिनिमम अचीव किया किसी एक एक्स के ऊपर और फिर वो बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो दिस एक्स इज फॉर एग्जांपल यूनिक। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका फंक्शन आया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन फंक्शन, उसने वो एक मिनिमम वैल्यू अचीव की और फिर उस मिनिमम वैल्यू को अचीव करने के बाद उसकी जो विसिनिटी थी उसमें भी वही वैल्यू रखी एंड देन इट डाइवर्ज्ड फ्रॉम दैट वैल्यू। ठीक है, सो दीज आर टू सिचुएशंस, दोनों जो है वो लोकल मिनिमाइजर से कहलाएंगे। एक को सिंपली हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट कहते हैं, एक को वीक कहते हैं। स्ट्रिक्ट की बजाय बाज लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग लोकल मिनिमाइजर भी यूज करते हैं। ओके, so now we will proceed with our other concepts, a few more definitions. So we are, as I said, we are mostly interested in recognizing local minimizers. ठीक है, global minimizers are very hard to achieve and except in few examples we usually forget about global minimizers, especially if the function is non-smooth. So recognizing a local minimizer, तो रिकॉग्नाइजिंग लोकल मिनिमाइजर का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि एक फंक्शन था, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस। सो इफ दिस इज x, y एक्सिस इज f ऑफ x, तो अगर आप ये देखेंगे
कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऑल ऑफ दीज आर स्टेशनरी पॉइंट्स, मीन्स कि यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। ठीक है, सो इफ आई फॉर्म अ सेट ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव है वो 0 है, ये वो सारे पॉइंट्स हैं, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप अगर अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो 0 है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हम कैसे फाइंड करेंगे ये वाला सेट जो है? तो एक तरीका तो ये है कि आपको जो जो अभी मैं अभी एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास इस एफ ऑफ एक्स का कोई एनालिटिकल एक्सप्रेशन है तो उसका डेरिवेटिव लें, उसको इक्वल टू 0 पुट करें और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, वो आपको ये वाले पॉइंट्स दे देगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज एनालिटिकल सोल्यूशन। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर आपको एफ ऑफ एक्स नहीं पता या आपको डेरिवेटिव लेना नहीं आता तो आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल दिस इज माय एक्स 0, और फिर आप चलते जाएं एक्स को वेरी करते जाएं और देखते जाएं कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर आपका जो डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा है। ठीक है, दीज आर टू मेथड्स। पहला जो है एनालिटिकल सोल्यूशन है, दूसरे को हम कहते हैं इटरेटिव सोल्यूशन। ठीक है, इन दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं, ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नंबर 1 मेथड इज एनालिटिकल, जिसके भी मैं एग्जांपल कराता हूँ थोड़ी देर में, और नंबर 2 इज इटरेटिव। Right, so most of the time iterative methods are used because analytical solutions do not exist. मैं अभी बताता हूँ क्यों। So अब डेरिवेटिव तो 0 हो गया, ये हमने किसी तरीके से फाइंड कर लिया एनालिटिकली या इटरेटिव मेथड से। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली मिनिमम ही है, ये कोई और स्टेशनरी पॉइंट नहीं है? मसलन अगर आपके पास जो है ये वाले जो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपका फंक्शन मैक्सिमम है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, तो आपने डिफरेंशिएशन करनी है किसमें, कि जो आपका पॉइंट है वो वहाँ पे एक्चुअली मिनिमम है, वहाँ पे जो है वो मैक्सिमम नहीं है या सैडल पॉइंट नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, तो फिर आप डबल डेरिवेटिव लेते हैं, आप डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स देखते हैं। ठीक है, और इसके साइन की बेस पे आप बताते हैं कि जो पॉइंट है एक्स वो वाकई मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो अब इसको थोड़ा फॉर्मुलाइज करते हैं। तो ये मैंने बताया कि ये चीज़ें बेसिकली आती कैसे हैं इनटू डिस्कशन, और थ्योरम्स क्या हैं जो गवर्न करते हैं हमारे फ्रेमवर्क को जो अभी हम डिस्कस करने लगे। सो द फर्स्ट टूल इज व्हाट वी कॉल टेलर सीरीज और टेलर थ्योरम। आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा अंडर ग्रेड में जो आपने मैथ के कोर्सेज लिए हुए हैं। सो लेट्स जस्ट ब्रीफली रिव्यू इट। सो टेलर थ्योरम provides us a way to approximate a function in a local neighborhood using derivatives. ठीक है, तो अगर मेरे पास ये x है और ये f of x है, f of x कुछ भी हो सकता है, something like this, तो इस पॉइंट के अराउंड, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज x, इस पॉइंट के अराउंड आई वांट टू अप्रोक्सीमेट माय फंक्शन अराउंड दिस पॉइंट। तो टेलर थ्योरम प्रोवाइड्स अस एन अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डेरिवेटिव्स ऑफ f of x। बहुत सिंपल है, वो ये कहता है जो टेलर थ्योरम है कि आप जो है x के साथ एक स्टेप ले लें, x प्लस डेल्टा x, सो दिस पॉइंट इज x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो अगर आपको f ऑफ x इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू पता है जो पहला पॉइंट था, तो आप दूसरे पॉइंट के ऊपर वैल्यू कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव्स। वो क्या है, वो ये है कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, दिस इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये वैल्यू है आपकी f ऑफ x।
ठीक है, तो x प्लस डेल्टा x के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, यू कैन अप्रॉक्सीमेट इट यूजिंग f ऑफ x, ये वैल्यू जो कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है ना, x के ऊपर एक वैल्यू f ऑफ x कांस्टेंट है, प्लस अ स्ट्रेट लाइन, तो अभी मैं इसको जूम करता हूँ इन्हीं दो पॉइंट्स को, प्लस अ स्ट्रेट लाइन, सो स्ट्रेट लाइन कैसे, डेल्टा x आपका स्टेप है एंड डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ f ऑफ x, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन है। फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ये है कि ये आपका x था और ये x प्लस डेल्टा x था, तो एक आपने बेस वैल्यू सेट कर दी और फिर आपने इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन। सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन में आप एक और टर्म भी ऐड करते हैं, दैट केटर्स फॉर दिस कनकेविटी, सो ये दो वही पॉइंट्स हैं, कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, और हो सकता है कि फंक्शन में कुछ कनकेविटी भी हो, मतलब इस तरीके से आपका फंक्शन जो है वो एक सेकंड ऑर्डर टर्म भी हो उसमें, उसके लिए फिर आप ऐड करते हैं व्हाट वी कॉल्ड सेकंड ऑर्डर टर्म, और उसको कैसे लिखते हैं, सो वी राइट 1/2 डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। This is called second order approximation of any differentiable function using Taylor theorem. कि आपके पास एक पॉइंट x था, दूसरा x प्लस डेल्टा x था, इनके दरमियान में अगर ये वैल्यू आपको पता थी which was f of x, how can you get this value which is f of x plus delta x? तो टेलर थ्योरम ये कहता है कि आप जो है वो ये वैल्यू लें, ये कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन लें और एक आप क्वाड्रेटिक टर्म लें, इन तीनों को ऐड करें यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, यू विल गेट दिस f of x plus delta x. So this can be shown to be best approximation if delta x is small enough. Very good approximation, and most of the time these three terms are sufficient for approximation. We do not go to third or fourth term. ठीक है, अब इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि अब अगर हम एक से ज्यादा डायमेंशन में चले जाएं तो फिर क्या होगा, what will happen, who is going to tell me how to use this Taylor theorem if x is a vector? तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x वेक्टर है तो आपके पास x1 x2, दो डायमेंशन में तो एटलीस्ट हम प्लॉट कर सकते हैं, तीसरे डायमेंशन में आपके पास f ऑफ x1 x2 होगा, तो if this is a function in 3 dimensions, how do you approximate in 3 dimensions using Taylor theorem? कौन बताएगा ये कैसे मॉडिफाई होता है? सर डेल ऑपरेटर आ जाता है मैट्रिक्स के साथ। व्हाट इज डेल ऑपरेटर? सर डेरिवेटिव्स ही होते हैं उन सारी एंट्रीज के जो उस मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। तो ठीक है किसी हद तक, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है लेट्स जनरलाइज इट, ठीक है, 3 टर्म्स है ना, ये तो समझ आ गए सबको, अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्लीज पूछें अगर नहीं समझ आया तो, क्योंकि आगे हम इसको रिपीटेडली यूज करेंगे। सिंपल अप्रॉक्सीमेशन है आपके किसी भी फंक्शन की जिसकी वैल्यू x पॉइंट के ऊपर आपको पता है और आप उस वैल्यू से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं x प्लस डेल्टा x के ऊपर उसकी वैल्यू, ठीक है, तो टेलर थ्योरम सेज कि आपको 2-3 चीजें पता हूं, f ऑफ x, ठीक है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, उसका सेकंड डेरिवेटिव, इन 3 चीजों से आप वो वैल्यू बड़े अच्छे तरीके से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। सो अब इसमें देखिए पहली टर्म है विच इज सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट, दूसरी टर्म है जो कि सॉर्ट ऑफ डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रही है, और फिर तीसरी टर्म है जो कि डबल डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब इन्हीं 3 टर्म्स को मल्टी वेरिएबल के केस में हम जो है वो एक्सटेंड करते हैं। सो वी हैव
एक्सटेंशन टू n डायमेंशन। सो अब मेरे पास जो f ऑफ x है उसमें x क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। सो यहाँ पे x इज n क्रॉस 1 वेक्टर। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास जो फंक्शन होगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x भी अब वेक्टर होगा, ठीक है। तो आप x प्लस डेल्टा x पे वैल्यू सिंथेसाइज करना चाहते हैं, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जो f ऑफ x पे वैल्यू थी बिल्कुल उसी की एक्सटेंशन देखते जाएं जैसे हमने वहां पे किया था, प्लस वहां पे क्या था, डेल्टा x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, तो स्केलर थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे अब वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूं, हाँ जी शुएब, क्या करना चाहिए। एक सेकंड, क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि अगर आप पिछले पिछले पेज पे देखें तो यहाँ पे डेल्टा x था, जी इट वाज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव, जी ठीक है। फिर जी डेल्टा x स्क्वायर था, इट वाज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय डबल डेरिवेटिव। जी तो ये दोनों स्केलर थे, ये भी 1 क्रॉस 1 था, ये भी 1 क्रॉस 1 था। अब जी। मेरे पास अच्छा, वेक्टर है, अब मैंने ठीक। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो वेक्टर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते ओके, हैं। सो इस केस में सर जैकोबियन आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय नहीं नहीं जो ये देखो, डेल्टा। f स्केलर है, f स्केलर है, अच्छा, एफ स्केलर है, सो तो दिस इज जस्ट व्हाट। keep in mind this is 1 क्रॉस 1, this is also 1 क्रॉस 1। अब मैंने यहाँ पे टर्म डालनी है, इट मस्ट आल्सो बी 1 क्रॉस 1, तभी ये ऐड डॉट हो सकते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट एग्जैक्टली, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन डेल्टा x, तो ये वेक्टर है, ट्रांसपोज इनटू व्हाट वी कॉल ग्रेडियंट ऑफ f, इसको मैं अभी डिफाइन करता हूँ, ठीक है। डेल्टा एफ एक्स, इसको मैं अभी डिफाइन करता हूँ, ये हायर डायमेंशन में आपके डेरिवेटिव के इक्विवेलेंट है। और फिर थर्ड टर्म क्या आएगी, थर्ड टर्म वहां पे हमारे पास क्या था, वहां पे हमारे पास था डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डबल डेरिवेटिव, ऐसे ही था ना। अब यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट जो टर्म आएगी दैट इज 1/2 वैसे का वैसे, डेल्टा एक्स वेक्टर है, ट्रांसपोज, ठीक है, और बीच में एक मैट्रिक्स आएगा h ऑफ x, मैं इस मैट्रिक्स को भी बताता हूँ ये क्या है, और फिर डेल्टा x। So this is 1 क्रॉस n, this is n क्रॉस n मैट्रिक्स and this is n क्रॉस 1, तो टोटल साइज क्या हो गया 1 क्रॉस 1, ठीक है। So this h of x is double derivative matrix, so h of x is called Hessian। तो इनको डिफाइन कर लेते हैं, डेल्टा f ऑफ x is called gradient vector, gradient of our function, ठीक है। So it is a column vector n×1 and it is defined as you have चूंकि आपका जो x है, x is like this, x1 x2 till xn। तो आप क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव से, पार्शियल बाई पार्शियल x1 इंटू एफ ऑफ x, फिर पार्शियल बाई पार्शियल x2 इंटू एफ ऑफ x, और आखिरी टर्म क्या होगी, पार्शियल बाई पार्शियल xn इंटू एफ ऑफ x, ठीक है। तो आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स का वेक्टर है, क्योंकि x का साइज n है, n डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो n पार्शियल डेरिवेटिव्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, अरेंज्ड इन कॉलम वेक्टर, दिस इज कॉल्ड आवर ग्रेडियंट वेक्टर, ठीक है।
और इसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल वही है जो हम डेरिवेटिव्स की एक डायमेंशन में देख के आए हैं. सो इफ दिस इज अ एक्स वेक्टर तो ये किधर पॉइंट करेगा? इफ दिस इज योर एफ ऑफ एक्स तो आपका जो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो ग्रेडियंट है इट विल पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज, जहाँ पे आपका जो एक्स है वो रैपिडली चेंज हो रहा है. ठीक है, बिल्कुल वो इंटरप्रिटेशन है, लेकिन अब उसको आपने विजुलाइज करना है मल्टी डायमेंशंस में बजाय इसके कि आप उसको सिंगल डायमेंशन में देखें. So it points in a direction where f of x increases the most rapidly at point x. So किसी भी एक given point के ऊपर जब आप इसको evaluate करेंगे तो ये आपको वो डायरेक्शन बताएगा. देखें वेक्टर आपको हमेशा एक डायरेक्शन ही बताता है, तो ग्रेडियंट ऑफ f एक वेक्टर है. सो दिस थिंग इज अ वेक्टर, तो ये आप किसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा. वो कौन सी डायरेक्शन होगी? वो वाली डायरेक्शन होगी जिसमें आपका जो फंक्शन है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आप इसको एवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम जो रैपिडली चेंज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है बेसिकली, उस डायरेक्शन में आपको ये पॉइंट करेगा ग्रेडियंट ऑफ f. जो h ऑफ x है ये आपका डबल डेरिवेटिव का मैट्रिक्स है. सो इट इज डिफाइंड एज h ऑफ x. अब सिंपली आपने यही जो ग्रेडियंट पकड़ा है, अब आपने इसका एक सिंगल डेरिवेटिव लिया, n वेरिएबल थे तो वेक्टर बन गया. अगर आपने डबल डेरिवेटिव लेना है तो जाहिर है आपको एक मैट्रिक्स में रखनी पड़ेंगी सारी चीजें. सो आपका जो पहली एंट्री होगी दैट विल बी डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 ऑफ योर फंक्शन. ठीक है, फिर जो दूसरी एंट्री होगी दैट विल बी x1 x2 फिर x1 x3 x1 x4 और जो आखिरी एंट्री होगी रो के अंदर पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल x1 xn. फिर आप इस तरह रोज में आएंगे और यहाँ पे आ जाएगी पार्शियल, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल xn पार्शियल x1 f ऑफ x, और जो आखिरी एंट्री होगी दैट विल बी पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल स्क्वायर xn f ऑफ x. ये डबल डेरिवेटिव्स का मैट्रिक्स है. हर x1 का x2 के लिहाज से, x1 का x3 के लिहाज से, x1 का x4 के लिहाज से एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस n. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस n. और इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? कोई इसकी और प्रॉपर्टी है? मोहसिन? सर डायगोनल पर आप कुछ कह सकते हैं? एंटी डायगोनल. देखो जो दूसरे कॉलम और पहली रो में चीज पड़ी होगी और जो पहली रो और दूसरी रो और पहले कॉलम में पड़ी होगी उनमें कोई रिलेशनशिप होगा? सर सिमेट्री. सिमेट्री, वेरी गुड. इट विल बी n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हमेशा n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, और इसमें डबल डेरिवेटिव्स पड़े हुए हैं बिल्कुल उसी एनालॉजी के तहत जो हमने पहले देखा था. अच्छा, अब जरा इस पे दोबारा आए. ये जो चीज है ये हमने पहले देखी है कहीं पे नाजिश? ये वाली चीज कहीं देखी है कोर्स में? वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म थी. वेरी गुड. याद है क्वाड्रेटिक फॉर्म? क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसी थी? सो क्वाड्रेटिक फॉर्म वाज, इसको कंपेयर करें जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ी थी, x ट्रांसपोज ax. ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज है. x वेक्टर था, a हमारे पास n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और फिर आगे वही x जो है वो वेक्टर था. ठीक है, सो दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ h. तो वो वाले जो सारे कॉन्सेप्ट्स थे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के, वो हम यहाँ पे एग्जैक्टली अप्लाई कर सकते हैं. ओके, इस वजह से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ी थी, एक रीजन ये भी थी. ओके,
सो अब हमारे पास क्या हो गया, जब हम मल्टी डायमेंशन में गए हैं तो उसी तरीके से एक कांस्टेंट टर्म आ गई विच इज दिस, एक लीनियर टर्म आ गई जिसमें हम ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं, और फिर एक हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म आ गई विच इज क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ आवर हेसियन, हेसियन जैसे हमने डिफाइन किया हुआ है। ओके, सो एक मैं एग्जांपल करा लूँ आप लोगों को इससे पहले कि आप लोग ये भूल जाएं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। तो सपोज मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो ये है। So f of x is x1 square plus x2 square। ठीक है, तो x मेरे पास बेसिकली 2 डायमेंशनल है, x1 x2। तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा? सो ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ x, इसकी जनरल फॉर्म होगी, आप जो है वो डेरिवेटिव लें, सो पार्शियल बाई पार्शियल x1 ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, और फिर दूसरी रो में पार्शियल बाई पार्शियल x2 ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये आपका ग्रेडियंट बन गया। सो क्या आएगा यहाँ पे? 2x1 और 2x2। जी, सो 2x1 और 2x2। देख रहे हैं ये वेक्टर बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स x। 2 अगर कॉमन ले लें तो x बन जाएगा अंदर। अच्छा, हेसियन क्या होगा? अब उसी फंक्शन का आपने डबल डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा पहली टर्म होगी पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल x1 स्क्वायर ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2। क्या आएगा यहाँ पे? एनीवन कैन अनम्यूट एंड टेल मी। हमास सर 2 आएगा। 2 आएगा। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 इज 2। इधर क्या आएगा ये भी बताते जाओ, आगे रो में, दूसरे कॉलम में 0 और नीचे 0 और फिर 2। 0 0 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? हेसियन आ गया। तो ये जो ऊपर फॉर्म लिखी है ना सारी, इससे आपने डरना नहीं है। तो ये बहुत सिंपल है एक्चुअली। तो आप यूजिंग दिस ग्रेडियंट एंड दिस हेसियन you can approximate this f of x at any x plus delta x। यहां तक कोई सवाल इससे पहले कि हम आगे चलें? ओके जी, सो नाउ we have the basic introduction to Taylor theorem for multiple dimensions। ठीक है, और we know the definition of gradient, Hessian, how do we use them and how they are related to our quadratic form जो हम पहले कर चुके हैं। अब हम कुछ थ्योरम पढ़ेंगे जो कि इन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे और हमें बताएंगे कि हमारे वो जो लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, वो कब आ सकते हैं, कब नहीं आ सकते, और उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। ये जो बुक में अपलोड करूँगा उसमें इनके प्रूफ्स भी हैं, जो बहुत एसेंशियल प्रूफ्स हैं वो हम करेंगे। बाकी यू कैन रेफर टू द बुक। ठीक है, तो थ्योरम 1 इज, so theorem 1 is first order necessary conditions। so first order necessary conditions, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है आप सिर्फ ग्रेडियंट को देख रहे हैं। ठीक है, नेसेसरी का मतलब है मस्ट। नेसेसरी की जो दूसरी टर्म होगी जो हम यूज करेंगे वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट का मतलब होता है कि अच्छा इतना हो जाए तो काफी है। नेसेसरी का मतलब है मस्ट होना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है ग्रेडियंट, सेकंड ऑर्डर का मतलब है हेसियन। सो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस। सो इफ थ्योरम ये कहता है कि इफ x इज अ लोकल मिनिमाइजर, तो हम लोकल मिनिमाइजर से ही शुरू करें। इफ x, अब देखें, अब मैं सिंगल डायमेंशन में नहीं जा रहा। अब चूंकि हमें पता है
कि हम मल्टी डायमेंशन में डेरिवेटिव्स कैसे ले सकते हैं, डबल डेरिवेटिव्स कैसे ले सकते हैं, तो अब मैं डायरेक्टली मल्टी डायमेंशन में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो x है, दिस इज n क्रॉस 1 वेक्टर. So if x is a local minimizer, if x is a local minimizer of f of x, ठीक है, ये नहीं पता हमें कि स्ट्रॉन्ग लोकल मिनिमाइजर है या वीक लोकल मिनिमाइजर है, वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर वो लोकल मिनिमाइजर है ना, तो होगा क्या, तो जो x का ग्रेडियंट है, सॉरी जो f का ग्रेडियंट है, जब आप उसको एवेलुएट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो आपको 0 मिलेगा, 0 का वेक्टर। अब हम n डायमेंशंस में है, इसको जहन में रखें। बहुत सिंपल, अगर x जो है वो एक मिनिमाइजर है तो आपको क्या मिलेगा, उसका जो डेरिवेटिव है, जैसे हम सिंगल डायमेंशन में कहते हैं, वो 0 होगा, तो ग्रेडियंट उसका 0 होगा। ओके, अब लेट्स एक्सटेंड इट, सो देन वी हैव थ्योरम 2। वो ये कहता है, सो दिस इज सेकंड ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस। सेकंड ऑर्डर मतलब अब मैं क्या देखूंगा, अब ग्रेडियंट नहीं देखूंगा, अब मैं हेसियन देखूंगा। नेसेसरी का मतलब है मस्ट होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। सो if x is a local minimizer again, so if x, वही वाला पॉइंट जो ऊपर हम देख रहे थे, is a local minimizer, ठीक है, then जो आपका हेसियन है, आपने सॉरी इसकी सिंबल सही वाली सिंबल यूज करते हैं, जो आपका हेसियन है एट दिस पॉइंट, evaluated at this point, this Hessian evaluated at this point will be a positive semi-definite matrix. Will be a positive semi-definite matrix. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कह रही है कि x जो है अगर लोकल मिनिमाइजर है तो आपका डेरिवेटिव मींस ग्रेडियंट वहां पे 0 होगा। दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि ग्रेडियंट तो 0 होगा ही होगा, उसका जो हेसियन है, ठीक है, वो क्या होगा, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स होगा। तभी जाके हम कह सकते हैं, ये दोनों नेसेसरी कंडीशंस हैं कि आपका जो x है वो लोकल मिनिमाइजर है। ओके, तो इसका क्या मतलब है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स का? लेट मी आस्क शैला। तो उसकी आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती हैं। जी, गुड। सो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स। सो इसका मतलब ये है कि जो एच लैम्डा आई होंगी किसकी, हेसियन एवेलुएटेड एट दैट पॉइंट, ठीक है, वो जो मैट्रिक्स बन जाएगा उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो नॉन नेगेटिव है। अब ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी क्योंकि हमने जो पॉजिटिव सेमी डेफिनेटनेस है, आइगन वैल्यूज, ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देख के आए हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो नॉन नेगेटिव हैं। ओके, एक एग्जांपल करते हैं इससे पहले कि हम समराइज करें जो अभी तक पढ़ा है और फिर आगे चलें। सो लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो एक f of x है। Again, let's stay in 2 dimensions. So f of x is something like this, 2x1 cube. So अब मैं पूछूंगा आप लोगों से डेरिवेटिव्स और डबल डेरिवेटिव्स, स्टे अटेंटिव। 2x1 क्यूब प्लस 3x2 स्क्वायर प्लस 3x1 स्क्वायर x2 minus 24x2.
ठीक है, तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स जो है वो एक स्केयर में से वैल्यूज ले रहा है और आपको एक स्केलर रिटर्न कर रहा है, उनको कंबाइन कर रहा है ऐसे। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स। ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स की? इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी सलार? जी सर। मैं कह रहा हूँ कि हम सारे इस फंक्शन के सारे स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे? व्हाट डू वी मीन बाय स्टेशनरी पॉइंट्स? अभी बता के आया हूँ मैं, 5 मिनट हुए हैं। जी सर, इनके जो डेरिवेटिव 0 होगा। जी वेरी गुड, जो ग्रेडियंट है वहाँ पे वो 0 होगा। तो हम बेसिकली इस एफ ऑफ एक्स का एक ग्रेडियंट लेंगे। सो वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, वहां से सारे एक्स हमें मिलेंगे। ठीक है, ये वो एनालिटिकल सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ जो मैंने पहले बताया था कि दो तरह के सोल्यूशन है, एक एनालिटिकल सोल्यूशन है, एक इटरेटिव सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब मैं एनालिटिकल सोल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ। And please keep in mind this is not possible in most of the cases, लेकिन क्योंकि ये एग्जांपल बड़ी सिंपल है इसलिए we can do that। So सबसे पहले तो देखें इसका ग्रेडियंट को लिखते हैं, वो है क्या? So ग्रेडियंट है मेरे पास, एवेलुएट करें, कौन बताएगा ग्रेडियंट क्या आएगा? डेल्टा एफ एक्स, दैट विल बी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x1 और फिर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x2, 2 क्रॉस 1 वेक्टर होगा ये। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस थिंग एज इक्वल टू जी। पहली एंट्री क्या होगी? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 वो आ जाएगा मेरे पास, सिंपल है, 6x1 स्क्वायर प्लस 6x1 x2, राइट। बाकी दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी। और दूसरी एंट्री क्या आएगी? 6x2 प्लस 3x1 स्क्वायर माइनस 24, ये आपका ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, now let's put this equal to 0. When we put this equal to 0 vectors, it means 6x1 square plus 6x1 x2 is equal to 0 and 6x2 plus 3x1 square minus 24 is also equal to 0। आपके पास जो है वो ये दो इक्वेशंस आ गई, दो ही अननोन्स हैं। थोड़ी सी मैनिपुलेशन के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। पहला पॉइंट होगा 0 4, दूसरा पॉइंट होगा 4 माइनस 4 और तीसरा पॉइंट होगा -2 and 2। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमने देखना है कि इन 3 में से लोकल मिनिमा कौन सा है। इन 3 में से लोकल मिनिमा कौन सा है, उसके लिए जो पहले दो थ्योरम है ना उनको हम यूज करेंगे, जो ऊपर हमने लिखे हैं, आपके सामने है सारा कुछ। सो कैसे करेंगे? ये तो हमें पता है कि इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो ग्रेडियंट है वो 0 है, तो पहला थ्योरम तो यूज हो गया इन फाइंडिंग दीज पॉइंट्स। दूसरा थ्योरम, उसके लिए हमें हेसियन फाइंड करना है। सो हेसियन का एक्सप्रेशन कौन लिखवाएगा मुझे? हाँ जी, लेट मी आस्क। चले कोई बता दे, नोकिया 5। अगर आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं या सकती हैं, आई डोंट नो हु आर यू।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर आवाज आ रही है? चले मोहसिन आप ही बताएं, हेसियन क्या होगा? सर सारी टर्म्स होता हूँ। जी जी साली, चले पहली बताएं। सर पहली टर्म में x1 पार्शियल डेरिवेटिव स्क्वायर्ड हो जाएगा, 12x1 प्लस 6x2। जी वेरी गुड, 12x1 प्लस 6x2। हाँ जी, दूसरी टर्म आफाक आप बताओ, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो। 6x1 6x1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 आगे। उसके बाद 6x1 जी 6x1 गुड। ये हमेशा सिमेट्रिक होगा, अगर सिमेट्रिक नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आखिरी होगा with respect to 1 that will be 6, ठीक है, that will be 6। चलिए थैंक यू। अब देखें, अब जो है वो हेसियन हमारे पास आ गया। अब इस हेसियन को मैंने एवेलुएट करना है इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट है 0,4। अगर मैं 0,4 के ऊपर इसको एवेलुएट करूं, x1 की जगह 0 पुट करूं, x2 की जगह 4 पुट करूं, आई विल गेट अ मैट्रिक्स, और वो जो मैट्रिक्स होगा दैट विल बी 24006। राइट, सिंपल आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फिर अगर मैं दूसरी वाली वैल्यू, दूसरे वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करूं 4 - 4, तो फिर आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी, 6 को कॉमन ले लें तो आ जाएगा 4 4 4 1। और फिर अगर मैं तीसरे वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करूं तो फिर आ जाएगा मेरे पास मैट्रिक्स 6, फिर कॉमन ले लें तो -2 -2 -2 1, ये आ जाएगा। अब हमने देखना है कि इन तीन मैट्रिसेस में से जो दूसरा थ्योरम है उसको यूज करना है। ठीक है, दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि अगर x लोकल मिनिमा है तो हेसियन क्या होगा? पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है? रबिया? जी सर। इसकी आइगन वैल्यूज क्या है? सर 24 और 6। जी वेरी गुड। इसकी आइगन वैल्यूज हैं 24 और 6 और दोनों पॉजिटिव हैं। इट मींस दिस हेसियन इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, एक्चुअली इट इज पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, जो कि सबसेट है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट का। तो इसका मतलब है जो 0,4 है ये तो लोकल मिनिमा है, दिस इज लोकल मिनिमा। ठीक है, फिर आप दूसरे पॉइंट पे चले गए 4 - 4 पे। 4 - 4 पे हेसियन ये आ गया। अगर आप इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करें जो कि मैंने मैटलैब में की हैं तो आपके पास आएगी एक 39 आएगी, दूसरी -14 आएगी। ठीक है, अब ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट नहीं है क्योंकि इसकी दोनों आइगन वैल्यूज, एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका हेसियन इनडेफिनेट है। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट्स डेफिनेटनेस क्योंकि इसकी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। सिमिलरली जो तीसरा आपके पास हेसियन है, अगर इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करें वो आएगी आपके पास -18 और 6, सॉरी -19 और 8। तो ये वाला हेसियन भी आपके पास क्या है? इनडेफिनेट है। तो इन तीनों पॉइंट्स में से, जो इन तीनों स्टेशनरी पॉइंट्स में से जो 0 और 4 वाला पॉइंट है वो आपका लोकल मिनिमा है, और जो बाकी दो पॉइंट्स हैं वो लोकल मिनिमा नहीं है, एक्चुअली वो सैडल पॉइंट्स हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि सैडल पॉइंट्स क्या होंगे। तो अगर आप इस फंक्शन को प्लॉट करें, जो कि मैं तरीका भी अभी आपको बताता हूँ कि इनको 2 डायमेंशन में विजुलाइज कैसे कर सकते हैं। तो सैडल पॉइंट is a point something like this.
तो ये आपका लोकल मिनिमा है, ठीक है। ये जो x पड़ा होगा ना यहाँ पे, ये वाला x आपका लोकल मिनिमा है कि फंक्शन डिक्रीज होते होते इस पॉइंट को टच किया और फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया। लेकिन इस तरह के जो पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे फंक्शन क्या हुआ कि डिक्रीज तो होता आया, लेकिन उसने कोई जो मिनिमा है वो क्लियर एग्जिबिट नहीं किया, बल्कि सॉर्ट ऑफ ऐसे हो गया और फिर आगे डिक्रीज करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे भी आपका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सो ऑल दीज पॉइंट्स दे आर कॉल्ड सैडल पॉइंट्स एंड दे आर वेरी प्रॉब्लमेटिक इन जो आपके पास क्या है ऑप्टिमाइजेशन में। तो आपका जो हेसियन है वो बताता है अगर हेसियन इनडेफिनेट आ जाए तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो सैडल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय चेकिंग आइगन वैल्यूज ऑफ आवर हेसियन मैट्रिक्स। तो जस्ट वो जो एक मैथमेटिक्स की जो ब्यूटी है उसको देखें कैसे जो है एवरीथिंग, वो जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने वो जो आइगन वैल्यूज हैं उसको कैसे फंक्शन की शेप से जो है वो रिलेट किया हुआ है। इट इज अमेजिंग। ओके, तो अगर हमारे पास 2 डिमेंशनल फंक्शन है तो उनको विजुलाइज करने के लिए, स्पेशली ये जो मिनिमा और मैक्सिमा है, इनको विजुलाइज करने के लिए व्हाट वी कॉल देम कंटूर प्लॉट्स। सो कंटूर प्लॉट्स, जी मोहसिन। सर के इंटरवल n के बारे में हम क्या कह सकते हैं, और क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर सारे सैडल पॉइंट्स में से एक लोकल मिनिमाइजर है तो वो ग्लोबल मिनिमाइजर भी होगा? नहीं, हम ये नहीं कह, ग्लोबल मिनिमाइजर को मैं छेड़ ही नहीं रहा, ठीक है, जब तक कि मैं कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन नहीं देता। मैंने पहले कहा था कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन लोकल मिनिमाइजर्स। तो अगर सारे जो आपके स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं और सब के ऊपर आपका हेसियन इंडेफिनेट आ गया है, नन ऑफ देम इज लोकल मिनिमाइजर, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको किसी और रीजन में जाके सर्च करना पड़ेगा। So these Okay. things are very easy and very intuitive. जैसे हम पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आई एम होपफुल कि चीज़ें जो है वो आसानी से समझ आती जाएंगी। सो व्हाट आर कंटूर प्लॉट्स? सो सपोज मेरे पास जो है वो 3 फंक्शंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z, और मैं ये वाला प्लॉट करना चाहता हूँ x² + y² = z²। तो अगर आप इसका प्लॉट देखेंगे तो वो इस तरह की कोई चीज़ होगी। तो ये y है मेरे पास, ये x है और ये z है। तो ये आपके पास एक बाउल शेप्ड होगा, समथिंग लाइक दिस। इस तरह का प्लॉट होगा ये, ठीक है, 3 डायमेंशन में। होप आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, इंट्यूशन बना सकते हैं कि ये किस तरह का प्लॉट होगा। तो दिस इज कॉल्ड सरफेस प्लॉट, ठीक है, कि आपके पास जो है आपने x और y को फिक्स कर दिया और फिर आपने देखा कि z की क्या वैल्यू आ रही है, उसको आप प्लॉट करते गए फॉर वेरिंग x एंड y, और उसको आपने 3 डायमेंशन में विजुलाइज किया। बट व्हाट डू वी वांट टू विजुलाइज इट इन 2 dimensions। 3 dimensions में जो विजुलाइजेशन है दैट इज डिफिकल्ट। सो कंटूर प्लॉट्स प्रोवाइड अस अ वे टू विजुलाइज एनी 3 dimensional प्लॉट इन 2 dimensions। कैसे? सो जो थर्ड डायमेंशन है, कंटूर प्लॉट से कहते हैं कि पहले उसको आप फिक्स कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मैं z की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दूं, z = 1, ठीक है, z = 1 मेरे पास एक प्लेन है, 3 dimensions में z = 1 एक प्लेन है xy प्लेन के पैरेलल, ठीक है। उस प्लेन को पकड़ के ये जो बाउल था इसको मैंने कट किया। इसको जब मैंने कट किया तो उसने इस सरफेस प्लॉट्स की जो बाउंड्रीज थी उसके ऊपर जो उसने कट किया उनको मैं नीचे ले आता हूँ, उनको मैं नीचे प्रोजेक्ट कर देता हूँ। मसलन इसने जो इसको ऐसे कट किया होगा, ठीक है, इसको मैं उठा के ये जो बाउंड्रीज के ऊपर इसने कट किया है इसको मैं XY प्लेन में देखता हूँ। जब इसको मैं XY प्लेन में देखूंगा तो ये क्या होगा? XY प्लेन में कौन सी शेप होगी? सर्कल होगा, सर्कल होगा। x² + y² = उसका z। रेडियस z 1 आपने होगा। फिक्स कर दिया, रेडियस 1 का सर्कल होगा। गुड, ये इस तरीके से आपको नजर आएगा। दैट इज z = 1। अब अगर आप z = 1 से ऊपर जाएंगे और फिर ये प्लेन आप कट करेंगे
तो आपको फिर एक सर्कल मिलेगा, लेकिन वो सर्कल जो है वो z लार्जर देन 1 के लिए मिलेगा। और जब आप इस पॉइंट से नीचे आएंगे तो आपको एक और सर्कल मिलेगा। ठीक है, नीचे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे तो आपको इस तरीके से जो है वो आपको एक वो कंटूर मिल जाएंगे इस सरफेस के फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ z। अब ये जो चीज है ना, इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी है कि जो थर्ड डायमेंशन है z की वैल्यू वो कांस्टेंट है। ठीक है, किसी भी लाइन के ऊपर जो आपने कंटूर प्लॉट किया है यहाँ पे, वहां पे z की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि मैं इसमें कहीं पे भी चला जाऊं, इसके ऊपर मूव करना शुरू कर दूं लाइक दिस, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। इसके अंदर में आता हूं तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती है, इससे बाहर में जाता हूं तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करती है। ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने फंक्शन का मिनिमम फाइंड करना है तो मैं किधर जाऊंगा? फंक्शन का अगर मैं मिनिमम देख रहा हूं तो मुझे किधर जाना चाहिए? टुवर्ड्स द जो यहाँ पे एक्स वाई का ओरिजिन है, क्योंकि उस साइड पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो वेरी नाइस। वो जो आपके पास जो है एक टूल है, ग्राफिकल टूल है, मसलन अगर आप जो है वो यहाँ पे हैं किसी पॉइंट पे, तो मिनिमा हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा, इस साइड पे आपका मिनिमा होगा। इधर जाएंगे आप तो मैक्सिमा होगा, क्योंकि आपके जो कंटूर है उनके वो उस साइड पे उनकी जो वो रेडियस है वो बढ़ रहा है, मींस जो थर्ड डायमेंशन है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। So for this one it is much easier to plot. They could be very difficult to actually plot, और फिर जो है वो उनके साथ जो है वो बाज़ औक़ात हमें वो कलर शेडिंग यूज़ करनी पड़ती है कि अगर वो क्रॉस ओवर हो रहा हो उनका बीच में, और फिर उसके साथ एक बार चार्ट बनाना पड़ता है कि वो कलर बताए हमें कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है या कम है। ठीक है जी, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ कि आप जो है वो चीज़ों को 2 डायमेंशन में विजुलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास जो है वो ये सर्कल की बजाय एक इलिप्स बनता तो फिर मेरे पास ग्राफ कैसा आना था? तो इसको जब मैं प्रोजेक्ट करता एक्स वाई के ऊपर तो फिर मेरे पास जो है एक इस तरह का ग्राफ आ जाता। सॉरी, ये अज्यूम करें यहाँ पे ये लाइन है, आपके पास क्या आ जाता है? एक जो है वो इलिप्स होती हैं ढेर सारी, और सर्कल्स की बजाय अगेन जो आपका मिनिमा है वो टुवर्ड्स जो है वो ओरिजिन ही होता। ठीक है, वी विल बी यूजिंग देम टू विजुलाइज मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमारे जो एल्गोरिथम्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। ये क्लियर है? इसमें कोई मसला इसको विजुलाइज करने में? 3 डायमेंशनल प्लॉट को 2 डायमेंशन में, बस आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो थर्ड डायमेंशन है उसको आपने एक कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर कट करना है, और फिर उसको दिमाग के अंदर आपने प्रोजेक्ट करते हुए एक्स वाई पे प्लॉट करना है। ओके जी, तो अब अगर मैं जो पिछली एग्जांपल हम कर रहे थे उसको इसके साथ कनेक्ट करूं और एक समरी सी बनाऊं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, तो ये एग्जांपल हमने की थी 2 थ्योरम इंट्रोड्यूस करा के। तो समरी ये है कि आप यू आर सर्चिंग फॉर अ लोकल मिनिमाइजर। ठीक है, इसको हम सर्च कर रहे हैं। तो दीज टू थ्योरम्स जो अभी हमने देखे हैं वो हमें बताते हैं कि आपके पास जो है वो एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। सो दिस इज सेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स। मीन्स इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो आपका डेल्टा एफ ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक हो सकता है इन सम फॉर सम फंक्शंस, ये 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, इन जनरल दे आर इनफिनाइट। तो ये बहुत बड़ा सेट हो सकता है। इनमें से एक पॉइंट होगा, ठीक है, इनमें से एक पॉइंट होगा या इस तरह के और भी पॉइंट्स हो सकते हैं विद इन सम नेबरहुड जो कि लोकल मिनिमाइजर होगा। और इस लोकल मिनिमाइजर की प्रॉपर्टी क्या होगी कि इसका जो हेसियन है वो क्या होगा? पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स होगा। ठीक है,
तो हो सकता है कि ये जो हमने नेबरहुड बनाई इसमें ये वाला लोकल मिनिमम है, इधर एक और लोकल मिनिमम पड़ा हुआ है विद इन दिस नेबरहुड एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपके लोकल मिनिमाइजर दे आर इन जनरल फॉर ए गिवन एफ, दे आर नॉट यूनिक। ओके, सो देयर इज सम क्वेश्चन इन द चैट। जी ईशा, कोई सवाल है? नहीं सर, उस वक्त आपने पूछा था कि इफ वी कैन हेयर यू, तो उस वक्त आई रोट ओके यस सर। सॉरी मैंने अब देखा है वो। ठीक है, तो इन जनरल जो आपके लोकल मिनिमा है दे विल नॉट बी यूनिक। तो अमंग स्टेशनरी पॉइंट्स लोकल मिनिमा वो पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर आपका हेसियन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है और वो यूनिक नहीं होंगे। बट इफ आई पुट अ फर्दर कंडीशन ऑन माई एफ, so if I say that ये जो फंक्शन है मेरा f का, दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जिसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को और इसकी इंट्यूशन दूंगा बजाय इसके कि इसकी मैथमेटिक्स में जाएं। इट इज अ कन्वेक्स फंक्शन। सो कन्वेक्सिटी, लीनियर फंक्शंस हम सब लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़े हुए हैं। क्या होते हैं लीनियर फंक्शंस? लीनियर फंक्शंस होते हैं जो कि एडिटिविटी और होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियरिटी। ठीक है, लीनियर सिस्टम जैसे हमने पढ़े हुए हैं। सो कन्वेक्स फंक्शंस आर अ फॉर्म ऑफ सब लीनियरिटी। ठीक है, तो सब लीनियरिटी मीन्स कि आप उस जो लीनियर का स्कोप है थोड़ा बढ़ा देते हैं और फिर उनको देख रहे होते हैं। ठीक है, सो इफ एफ ऑफ एक्स इज कन्वेक्स फंक्शन, तो फिर एक बहुत ही यूनिक चीज होती है कि इन सारे स्टेशनरी पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही आपके पास लोकल मिनिमाइजर होता है और वही लोकल मिनिमाइजर ग्लोबल मिनिमाइजर भी होता है। That is the beauty of convex functions. But just keep in mind, every function is not a convex function. तो convex function जो है वो actually आपकी लाइफ को बहुत easy बना देते हैं, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसमें ज़रूरी नहीं, और ऐसा होता भी है कि आपके फंक्शंस कन्वेक्स नहीं होते। तो फिर हम क्या करते हैं, उन फंक्शंस को अप्रॉक्सीमेट करते हैं यूजिंग सम वेरी सिमिलर टाइप ऑफ कन्वेक्स फंक्शन और फिर उनको ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ी जेनेरिक स्टेटमेंट है, एक्चुअली दिस शुड बी अ स्ट्रिक्टली कन्वेक्स फंक्शन। मैं बताऊंगा आपका ताकि हम गलत ना हो, ऊपर लिख देते हैं। तो ग्लोबल मिनिमाइजर इज अ लोकल मिनिमाइजर अगर आपका फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है, या इन जनरल उसको मैं थोड़ा सा अब्यूज ऑफ नोटेशन टर्मिनोलॉजी करूं तो कन्वेक्स फंक्शन है अगर तो। ठीक है, सो कन्वेक्स फंक्शन, कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन और कन्वेक्स फंक्शन दे आर सबसेट ऑफ व्हाट वी आर स्टडीइंग। वो एक बड़ी एक पर्टिकुलर फील्ड है जो कि हमारी जिंदगी को आसान बना देती है। क्यों? ड्यू टू दिस फैक्ट कि आपका जो लोकल मिनिमाइजर है वो ग्लोबल मिनिमाइजर भी होगा। अब हमें इनकी डेफिनेशंस का पता है कि व्हाट डू वी मीन बाय लोकल मिनिमाइजर एंड ग्लोबल मिनिमाइजर। तो यहां तक कोई सवाल? ओके जी, सो आई विल स्टॉप हियर क्योंकि फिर अगला टॉपिक जो है वो फिर हम परसों ही देखेंगे। तो क्योंकि वो चीज़ें फिर कनेक्टेड हैं, मुझे फिर दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, सिंपल ओनली ऐसा ऐसा लेके जाएंगे ताकि चीज़ें जो है वो हमें समझ आती रहे। जी मोहसिन। सर ये हम डिस्कशन कर रहे हैं मिनिमाइजर्स के बारे में, तो जी इसके पैरेलल एक डिस्कशन ये भी होगी कि मैक्सिमाइजर्स के बारे में भी? नहीं, मैंने जब हमने पिछला लेक्चर किया था ना, तो मैंने कहा था कि हम सिर्फ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने एक शॉर्ट टर्म गोल हमारा ये है कि हमने वो जो दो सॉल्यूशंस पढ़े हैं ना, कौन से सॉल्यूशन, लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन और मिनिमम नॉर्म सॉल्यूशन, वो दोनों हम इस फ्रेमवर्क के थ्रू देखेंगे। अभी हमने स्पेसेस के थ्रू देखा हुआ है, अब हम उन दोनों को इसके थ्रू भी देखेंगे। प्लस दिस इज अ टूल, दिस इज अ स्किल जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और आगे हम जब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करेंगे या जब मॉडलिंग पे जाएंगे तो फिर भी ये वाली चीजें हम यूज कर रहे होंगे, इस वजह से हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। अगेन दिस इज नॉट अ कोर्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। जब ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स पढ़ते हैं ना तो देयर इज अ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस फॉर एग्जांपल ये है कि मैंने जैसे आपको ये दो थ्योरम बताए, एफओएनसी और एसओएनसी, तो एक
रिगोरस मैथमेटिकल कोर्स में जिसमें आप ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे तो इनका प्रूफ करेंगे, वो इनके लेमास करेंगे, वो देखेंगे कि अच्छा ये चीज़ हमें कैसे मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ या डिसप्रूव कर सकता हूँ। लेकिन हम इसको एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं विद मिनिमम ऑफ मैथमेटिक्स जो कि हमें चाहिए फॉर आवर पर्पस, विदाउट सेक्रीफाइसिंग जो हमारा एंड गोल है कि हमें चीज़ें समझ भी आनी चाहिए, राइट? सो यस सर, so that is our goal. So I am going to stop here for this lecture. तो परसों हम बाकी चीज़ें देखेंगे, यहीं से हम शुरू करेंगे जहाँ पे आज हमने ये चीज़ें ख़त्म की हैं। ओके, सो आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स लिया होगा, तो हो सकता है उन्हें चीज़ें बड़ी आसान लग रही हों। जैसे शुएब ने मुझे प्राइवेटली मैसेज किया हुआ है कि जो है वो चीज़ें उसने ये देखी हुई हैं, बट नॉट इन एन इंट्यूटिव वे, रेदर मैथमेटिकल वे। सो माई अप्रोच विल बी कि मैं इंट्यूशन ज़्यादा दूँ और उसको मैथमेटिक्स से लिंक करता जाऊँ, तो होपफुली यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। सो अगर कोई सवाल है रिगार्डिंग होमवर्क और एनीथिंग एल्स, आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 4 मिनट्स, नहीं तो आप जा सकते हैं। और यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 4 मिनट्स। एक और चीज़, हाँ, वो जो होमवर्क है, होमवर्क आप ऐसा करें, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चों का स्टोकेस्टिक का मिड टर्म है ऑन थर्सडे, तो आप बजाय इसके कि फ्राइडे को सबमिट कराएं, आप सैटरडे को सबमिट करा दें। तो एक दिन की मैं एक्सटेंशन दे रहा हूँ ड्यू टू स्टोकेस्टिक मिड टर्म, और बहुत सारे बच्चों का जो है वो स्टोकेस्टिक में इनरोल्ड हैं। ठीक है, बट यू कैन सबमिट इट ऑन फ्राइडे आल्सो।